ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب؟ جی حضرت میں کشمیر سے بولتا ہوں، ایک مدرسے کا استاد ہوں. ارے واہ. جی حضرت، آپ کا میں اکثر ماشاءاللہ بیان سنتا رہتا ہوں. آپ کا جو انداز ہے، آپ کا جو طرز ہے، مجھے بہت پیارا لگا. تو میں نے کہا آپ جیسے حضرات کی حوصلہ افزائی کرنا ہمارے ذمے ہے. بہت بڑی بات ہے. حوصلہ افزائی سے حوصلہ بلند ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے، اللہ آپ کی قدم قدم پہ مدد فرمائے. آمین ثم آمین. بالکل آپ نے بہت اچھا. حضرت یہ جو آپ نے جرت کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں اس کی داد دیتا ہوں آپ کو. سچ کہو تو میں دل سے رو کے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اچھا. کہ آپ تو سب کے ہمدرد ہیں، اور آپ یعنی کفر سے بچا رہے ہیں. خاص طور پر اپنے جو حضرات سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو آپ بہت ہمدردی دے رہے ہیں، اور ان کو آپ کفر سے بچا رہے ہیں. ارے ہر ایک کو سوتے سوتے کافر مت کہہ دو، ہر ایک کو کافر مت کہہ دو، ہر ایک کو کافر کہنے کے لیے کچھ چاہیے. تو قطعی ثبوت چاہیے. جی ثبوت چاہیے حضرت. میں بہت آپ سے بہت کچھ سیکھا. میں نے مدرسے کا استاد ہوں میں. چلو جماعت میں بھی ٹائم لگاتا ہوں. میں تھانہ بھون میں نے حفظ کیا، قرات پڑھی، عالم کا تھوڑا کورس کیا. جی عالم کا کورس کہاں پڑھا؟ یہ کشمیر میں پونچھ ایک ضلع ہے. اچھا، پونچھ تو مشہور ہے. مشہور ہے حضرت، مشہور ہے پونچھ. پونچھ میں مولانا فاروق صاحب ہیں. مولانا مصباحی، مفتی عارف مفتی عارف پونچھ میں ہے. وہ بریلی میں منظر اسلام میں تھے، افتاء کر رہے تھے پونچھ میں. اچھا نہیں، میں ان کو نہیں جانتا. یہاں ایک مولانا فاروق مصباحی ہیں. فاروق مصباحی وہ الگ ہیں. ان کو بھی میں نے ایک بار بلایا تو جھانسی تقریر کرنے کے لیے. اچھا. ایک ہے مفتی عارف. نہیں، ان کو میں نہیں جانتا ہوں. پونچھ میں ہی ہے. حضرت آپ کی تو پھر بہت مخالفت بڑھ گئی ہوگی اس طبقے میں. اب وہ کہ اب تو مجھے بائی کاٹ کر دیا نے ایسے لوگوں نے، متشدد لوگوں نے. اب وہ نہیں چاہتے کہ یہ اب اپن جانا بھی نہیں چاہتے. وہی ایسے لوگوں میں کیا جائیں جو بلا وجہ مسلمانوں کو کافر کہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی صحیح نہیں. جی میں کہتا ہوں کتنا آپ کا احسان ہے ان لوگوں پر اور ہم پر بھی. ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہاں بریلی لوگوں کے لیے ہم تو ایک مظلوم ہیں، ہم تو کسی کو کافر کہتے نہیں. یہ معاملہ اگر میں اختیار کرتا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والا. جی تو آج میرے سمجھ لو کہ ہوائی جہازوں سے ٹکٹ بکنگ ہوتی اس وقت. میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ بھگاؤ ہوائی جہازوں سے جانا ہے ادھر، کوئی مطلب نہیں. اللہ تعالیٰ کو جب عزت دینا ہوگا ویسی دے دے گا. اللہ نے اور کیا چاہیے. اب جب اللہ کو دنیا میں کام لینا ہوگا دوسروں کے اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھیج دے گا، ہے کہ نہیں. آپ کو جو اللہ عزت دے گا، جو اللہ آپ کو سرفراز فرمائے گا حضرت، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. میں نے کہتا ہوں بہت بڑا جہاد ہے آپ کے، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے. ہمارے پاس وہ منظر اسلام کے جو پرنسپل ہیں ہمارے ملنے والے ہی تھے. جی شیخ الحدیث ہیں. وہ بخاری شریف شرح لکھ چکے ہیں 6 جلدوں میں 4 جلدوں میں اب تک. جی ماشاء اللہ. جو حضرت کا مدرسہ ہے نا منظر اسلام، اس کے شیخ الحدیث ہیں. ہاں بریلی میں مفتی محمد عاقل صاحب. مفتی محمد عاقل صاحب تو وہ محتاط عالم و مدبر ہیں. لیکن اب دیکھو آدمی جب کہیں رہتا ہے تو آپ بھی جانتے ہو تو مجبوری ہے وہ، تو پھر کیا کر رہے ہو، ہے کہ نہیں. کوئی غلط بات جانتے ہوئے بھی آدمی پھر غلط نہیں کہہ سکتا ایسی جگہ پر. صحیح. مجھ سے انہوں نے بات کی 1 آدھ گھنٹے لگ بھگ بات ہوئی میری. وہ ہم نے ان کو بھی بلایا تھا جھانسی میں. تو کہہ رہے کہ آپ یہاں آؤ اور میں جیسا لکھوں ویسا لکھو کہ میں مسئلہ کے حالات کو مانتا ہوں اور یہ کر. تو میں نہیں گیا. بھائی اس مسئلہ کے حالات کو ہم کیوں مانے، اس طرح کی باتوں کو. حضرت ہم جو قرآن اور سنت کے سے ثابت ہوگا ہم اس کو مانیں گے. اس میں اعلیٰ حضرت فٹ آئے، اس میں مفتی تقی عثمانی فٹ آئے، اس میں کوئی بھی فٹ آئے، ہم سر آنکھوں پر حضرت، سر آنکھوں پر ہمارے بزرگ. جیسے مفتی عاقل صاحب نے ویسے درخواست کی، اور بھی عالم ہیں ان کی درخواست کو ہم مان لیتے تو ابھی ہماری لائن لگی ہوتی ہندوستان بھر میں پروگراموں کی. بالکل. ہوائی جہاز بکنگ کر دیتے ہیں کہ آپ تو بمبئی آؤ، دلی آؤ، ہوائی جہاز بک ہوں گے، آپ تو آئیے، 1 آدھ 2 کو ساتھ لے کے آئیے. جیسے ان کی بات ہوگی ہم تائید کرتے رہتے الٹی سیدھی.
तो फिर तो ये तो हमारे लिए हवाई जहाज, जब अमीनुल काजी जैसे के लिए हवाई जहाज बुक हो रहे हैं तो क्या हमारे लिए नहीं होते? क्या नहीं होता आपके लिए? देखिए हमें कोई परवाह नहीं, मतलब नहीं। एक कह रहा है कि आपकी लोग बेहतर तोड़ रहे हैं, सारे मुरीद निकल जाए, हमें कोई मतलब नहीं। एक अलीगढ़ से अशरफ का फोन आया, मौलवी अशरफ था, पढ़ा कहाँ था मालूम है? देवबंद के मदरसे में नदवा में। जी जी, अच्छा। नदवा मुझे मालूम था, मैं अलीगढ़ में मिल चुका था सही, तो मालूम था कि नदवा में पढ़ा है। तो बाद में बरेलवी मदरसे में पढ़ाने लगा था, जोहरा बाग में, फैजान मुस्तफा में। तो मेरे पास फोन आया जब मैंने ये बातें शुरू की, अरे हजरत सुना है कि आप कुछ ऐसा करने लगे हैं और आपके यहाँ मुरीद हटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। हाँ। और आपसे लोग बागी हो रहे हैं, मुरीद हट रहे हैं। अरे एक भी मुरीद न रहे हमारा, हमें उससे कोई मतलब। हमें तो हक बयान करना है, मुरीद एक भी रहे या न रहे, किसी से ही मुरीद हो जाए। हमने तो कह दिया कि हमारा तो मतलब किसी से ही मुरीद हो जाओ, लेकिन जो अल्लाह उसके रसूल के फरमान को न माने किसी से ही मुरीद हो जाए। हजरत हमने अल्लाह रसूल को राजी करना है, कोई मुरीद रहे कि ना रहे, मुरीद रहे ना रहे, कहीं भी जाओ किसी से ही मुरीद हो जाओ, हमें कोई मतलब। रोजी का जिम्मा तो हजरत अल्लाह ने दिया है ना। हाँ, ये तो कोई अगर मुरीद ये मानता है कि नहीं हालत के माने वगैरह हम मुसलमान नहीं रह सकते, तो हम उस मुरीद को इजाजत देते हैं कि अब तुम हमारा मुरीद है तो तुम और कहीं जाके मुरीद हो जाओ। हजरत ये तो आपने, यहाँ से जो हाजी लोग जाते थे ना, माशाल्लाह, मैंने आपकी वो सब, मैं कम से कम 6 महीने से आपके बयानात आपके मोबाइल से सुन रहा हूँ। तो हमारे यहाँ कोई जरूरत, यहाँ लगभग ज्यादा वही लोग हैं, तो हम तो बेचारे छुपे बैठे हैं, मजलूम, अपने आप को मजलूम समझ के बैठे हैं। हम इतनी बड़ी जरूरत नहीं कर सकते जो आपने की है। ये सही फरमान हजरत, वो मजबूरी है कि बहुत से जो आलिम है ना, बरेलवी आलिम, सुन्नी तो खैर दोनों ही है, देवबंदी बरेलवी दोनों ही सुन्नी। जी जी। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के खलीफत है, जी जी, जिन्हें बरेलवी भी दिल जान से मानता है, देवबंदी तो मानते ही मानता है पाकिस्तान में, मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो दोनों ही अहले सुन्नत है, देवबंदी बरेलवी दोनों ही। हम दोनों को सुन्नी कहते हैं। जलाली उनका हवाला देता है पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का, तो एक तरफ तो उनका हवाला दे रहा है, उनकी ताजीम करता है, दूसरी तरफ उनका कौल नहीं देखता कि दोनों को अहले सुन्नत मानते हैं, तो तेरे फतवे से तो फिर मुसलमान ही नहीं है पीर मेहर अली शाह। जी जी जी, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, देखो जो गहरी नजर वाले हैं ना, समझते हैं कि दोनों जब तकरीर करते हैं तो दोनों ही तो सुन्नी हुए। जी जी, सही है। देवबंद वाला भी चारों इमाम मानता है, बरेली वाला भी, देवबंदी भी तो काजी चिश्ती सोहरवर्दी नक्शबंदी सिलसिला मानता है, बरेली वाला ही मानता है, तो फिर कैसे गैर मुकल्लिद हो गए? दोनों मुकल्लिद हैं। जी जी जी, हाँ। अच्छा, दोनों में मुमासिलत बहुत ज्यादा है, आपने भी देखा हुआ, जैसे दोनों के जलसे होते हैं तो दोनों पहले कुरान पढ़वाते हैं, बाद में नाशरी पढ़वाते हैं, देवबंद वाले भी नाशरी पढ़वाते हैं, हाँ, बरेली वाले भी दोनों, बरेली वाले भी नाशरी पढ़वाते हैं। अब देखो थोड़ा कुछ फर्क है, नजरियात में फर्क होता है, वो तो होगा फर्क। अरे तो होता ही है, वो तो भाई भाई में होता है। तो भाई देखो, अब हजरत अबू तालिब के बारे में इख्तिलाफ है, बरेली वाले उन्हें मुसलमान नहीं मानते, और ये पाकिस्तान के जो बरेलवी आलिम है ना, अक्सर बरेलवी आलिम मुसलमान मानते हैं, काफी तादाद में। हाँ, मुसलमान मानते हैं। हाँ, जैसे अल्लामा काजी मुसलमान मानते हैं, हजरत काजी हनीफ साहब मुसलमान मानते हैं, जो पक्के कट्टा बरेलवी आलत के मानने वाले हैं, काजी हनीफ साहब। जी जी, हाँ, तो वो मुसलमान मानते, साबित करते हैं तो तकरीर में। अच्छा, और अगर बरेलवी को मालूम हो जाए मुसलमान साबित कर रहा है, तो फिर बरेलवी उसी को मुसलमान न माने जो हजरत अबू तालिब को मुसलमान साबित करता है। जी जी। हजरत पीर करम शाह अजहरी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी मुसलमान मानने के कायल हैं, उनकी किताब ज़ियाउन नबी है, उसमें मैंने पढ़ा है। हाँ जी। तो अब देखो ये तो नजरियाती इख्तिलाफ है ना, जो नहीं मान रहा उसकी मर्जी, जो मान रहा उसकी मर्जी। अब ये उसकी मर्जी है, उसका छोड़ दो, आप किसी पर ठोसते क्यों हो? इमाम काबा को मुसलमान मनवा रहे हैं, मोमिन मनवा रहे हैं, तुझे नहीं मानना मत मान, हम तो मनवा रहे हैं। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी जरूरत है आपकी, बहुत दाद देता हूँ मैं आपको। हम तो अपने इलाके में बेचारे अरब वालों को, वहाँ के इमामों को, यानी उनके पीछे जो छुप के पूछता है उसको कहते हैं नमाज पढ़ना, अपने नमाज इमामों के पीछे पढ़ना। हम आलल ऐलान नहीं कह सकते, वो एक जुलूस लेके आ जाएंगे हमारे मदरसों, हमारी मस्जिदों में। ये क्या किया आपने? अच्छा, इतना गलबा है उन लोगों का वहाँ? कुछ गलबा है हमारे। अब तो कुछ कम हो गए हैं, पहले तो हजरत 90% वो लोग थे, अब ये कुछ मकातिब खुल, ये पुंछ में। नहीं, आप कितने परसेंट तादाद? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो आधे से ज्यादा हैं, अभी भी 60% होंगे, 65% होंगे अभी भी, लेकिन कम हुए हैं। बरेलवी? हाँ, मेरे बरेली हजरात हैं। तो डरने की जरूरत ही नहीं, अब तो ऐलान कहना चाहिए 35%, 30% बहुत होता है।
जी 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 जी। अब तो और डरने ये की कोई थोड़ा जरूरत नहीं है साहब, बिल्कुल जरूरत नहीं। ये जमात का काम कुछ चला, कुछ मकातिब खुले, कुछ मदारिस खुले, वरना ये पीरों का अब ये तसल्लुत था। और जमात का काम में भी कुछ गड़बड़ी बहुत ज्यादा आ गई है। वो चक्कर हाँ, आ ये गई है अपनी किताबें चलाते हैं मस्जिदों में, कुरान की तफसीर जी। सुनना ही नहीं चाहते, और बल्कि हाँ कुरान की हाँ तफसीर बंद करवाई इन्होंने इंडिया में बहुत जगह। हाँ, कई जगह ऐसा हुआ चलो गाजियाबाद वो में बंद गलती। करवाई, भोपाल में बंद करवाई, जी मना किया, और इंदौर में जी कच्ची मस्जिद में मना किया। अब बताओ कि जी ये कौन सी जी तुम तबलीग कर रहे हो कि कुरान करीम की तफसीर सुनने को मना कर सही है। देते हो, हैं? वापस अगर जब गुलू आ जाता है ना, अपने आपे बड़ों का गुलू आता है ना, तो फिर इंसान मैंने तो हकीकत ये को नहीं देखा, देखता। क्या है, देवबंद वाली जमात हो या बरेलवी की, वो दावत इस्लामी हरी पगड़ी वाली और एक जी जी इनमें सफेद पगड़ी वाली, जब जब इनका हाँ जोर हुआ, इन्होंने अपनी अपनी किताबें मेंबरों पे लगवा दी। अच्छा जैसे जी तबलीग जमात का जोर बढ़ा तो उसने अपनी किताब तबलीग निसाब मुंतखब आदि, और दावत इस्लामी का जोर बरेलवी में बढ़ा तो उसने फैजान जी सुन्नत जी रखवा दी मस्जिद हाँ। के अंदर, और हजरत ये शाकिरियों का रोज बढ़ा तो उसने फैजान शरीयत रखवा हाँ दी मस्जिदों में। अच्छा, तो तो मतलब हजरत तुम ये ये अपनी अपनी किताबों की तबलीग कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम जी तबलीग अपनी अपने फिरके की कर रहे हो, इस्लाम की नहीं कर रहे। हाँ, इस्लाम की नहीं कर रहे। हाँ, इस्लाम की ये कर सर रहे हो यहाँ तो कह कहो कि नहीं, सबसे पहले कुरान का तर्जुमा तफसीर होना चाहिए हर मस्जिद में। बस उसके बाद और किताबें पढ़ेंगे तशरीह के लिए, लेकिन पहले तो कुरान पाक की तफसील है। देखिए, मैं कह रहा हूँ तफसीर है कि ये लोग तरह तरह से बरगलाते हैं कि साहब कुरान का तर्जुमा समझ में नहीं आता। अरे भाई, क्या समझ में नहीं आएगा? कौन सी ऐसी आयत है जो तुम कह रहे हो कि तर्जुमा समझ में नहीं आता है, हैं? हाँ, समझने की कोशिश करो, आ जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ, अगर 6,666 आयतें में से अगर 10-20 आयतें ऐसी हैं जिसका तर्जुमा मुश्किल से समझ में आएगा, तो उसके लिए आलिम है तो सही, वो तर्जुमा समझा देंगे, उसकी तफसीर बता हाँ, देंगे, और हैं? अल्लामा से पूछ लो। हाँ ऐसा तो है नहीं कि हर आयत का तर्जुमा समझ में नहीं आता हो। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अर्रहमान रहीम जो रहमान रहीम है, कुल अल्लाह कह जी दो कि वो अल्लाह है, कि इसमें कौन सी समझने वाली बात है? हाँ, सही बात है, सही बात है। लो अंसल हाज़िल कुरान, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते अला जबल, तो आप देखते हैं कि पहाड़ अल्लाह की तरफ से रेजा रेजा हो जाता है। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? कौन सी बात है? सही है। तमातुल इंस वल जिन वल आयातु बिमिस्लि हाज़ा कुरान, अल्लाह फरमाता है तमाम इंसान जिन्नात जमा हो जाए, कुरान के मिस्र ले आए, अगर उनके अंदर इतनी ताकत है, हैं? जी 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 इसमें हाँ हाँ, इसमें समझने वाली कौन सी बात है भाई? कौन सी बात सही है? अपनी वो तो तबलीग यूं है जमात कि वालों ने साहब ऐसा करा, काम तो देखो अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं, सब जानते हैं कि नमाजें सिखाई और हाँ हाँ हाँ, बहुत से काम अच्छे भी है, इसमें क्या शक है? शक की कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ चलो तुमने होता है अच्छे ना। काम किए तो वहाँ तुमने ऐसा भी किया कि कुरान की तफसीर से दूर कर दिया मुसलमानों। जी 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 हाँ हाँ, तो होता ही है ना। आज अगर आप शैतान तो अगर आप आज इनकी मस्जिदों में कुरान का तर्जुमा शुराना शुरू कर दें, जी फजर बाद असर बाद, ये कहते हैं नहीं, ये आप कभी और पढ़ लेना, जोहर बाद पढ़ लेना, हम फजर बाद असर बाद तफसीर तर्जुमा सुनाएंगे रोजाना एक रुकू का, तो फिर ये आपके हाँ हाँ दुश्मन जी बन जाएंगे कि नहीं नहीं, जो किताब जो कांदला से जो किताब लिखी है वही पढ़ी जाएगी बस। जी 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 जी। अब बताइए, कुरान की जगह ये अपनी अपनी किताबें हर मस्जिद के मिंबर पे रखवा रहे हैं, जी जी और जी सुबह जी शाम को अल्लाह पढ़वा रहे हैं, वो भी 50 साल से पढ़वा रहे हैं, आज से नहीं, 50 साल से। अरे 50 साल में तो जी हाफिज हो जाना चाहिए था इनको, तबलीगी निसाब का हो और जाए फजाइल अमल का। हो जाना चाहिए था। सही है, सही है, आपने ये बड़ी पता की बात कही। इनसे कहा जाए कि ये क्या कब तक पढ़वाओ भैया, तुम्हारा कब तक का प्लान है वो तो बताओ, कयामत तक क्या यही किताब चलेगी? 50 साल से चल रही है, कयामत तक क्या यही किताब पढ़ी जाएगी? और क्या इतना दुनिया में साल और आप आलिमों कुरान की पाक किताबें नहीं है? इतना साल कुरान पाक की आप तिलावत का तफसीर पढ़ते तो शायद हाफिज भी बन जाते कई। हाँ, हाफिज ही बन जाते हैं। देखो, अल्लाह के रसूल ने आखिरी हज में फरमाया है, दो चीजें जी तुम्हारे दरमियान में छोड़ रहा हूँ, एक कुरान, एक मेरी सुन्नत। एक मौके जी फरमाया कुरान मेरी इतरत, साफ फरमाया कि जो इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह न होगे। ना होंगे। सही सही मैं तो है, एक ही बहुत मशवरा सही। देता हूँ, कोई भी हो, देवबंद वाला हो, बरेली वाला जी हो, अहले हदीस हो, जी मौदूदी हो, ये जी हजरत। चारों के चारों जो फिरके कहे जाते हैं, यानी फिरके नहीं है, ये तो एक तंजीमें है, हम तो इन्हें फिरका नहीं कहते, तंजीम है। हाँ, मसालिक क्योंकि हो या तंजीमें के फिरका तो कादियानी है, फिरका तो फिरका नहीं मोतज़िली है, है। फिरका हम भी नहीं कहते हजरत, हाँ, या फिरका तो, मसालिक है। हाँ, फिरका तो जब कहा हाँ जाए, जब वो बिल्कुल ही अलग अकीदा हो जाए। देवबंद वाला भी अल्लाह के शुरू आखिरी नबी मानता है, देवबंद वाला भी जी साहबा को मानता है, बरेली वाला ही मानता है, अहले हदीस भी मानता है, मौदूदी भी मानता है। वो तो नजरियात जी का फर्क है, इसलिए हम कहते हैं ये फिरके जी नहीं, तंजीमें हैं, तहरीकें हैं। तो मेरी जी तो इन सब से ये गुजारिश है कि भाई मेरी जी असर काजी की बात मत मानो, न मैं कह रहा कि जी असर हुसैन काजी जो कहे वो करो,
میں تو کہتا ہوں 150 سال پہلے پہنچ جاؤ، 150 سال پہلے کے جتنے بھی عالموں کی کتابیں وہ پڑھ لو، اور سب سے پہلے تو قرآن کی تفسیر پڑھ لو. 150 سال پہلے کے عالموں نے کس عالم میں کیا تفسیر کی وہ پڑھ لو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کو سب مانتے ہیں، دیوبندی بریلوی بھی، اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کو سب مانتے ہیں. سب مانتے ہیں. اب دیکھو یہ اہل حدیث تو ایک ایسا وہ ہے، تحریک ہے، یہ تو کسی کو بھی نہیں مانتا صاحب، یہ تو ایک خطرناک جماعت ہے. ہاں صحیح اہل حدیث تو دیکھو نہ شاہ ولی اللہ کو مانے، نہ حضرت خواجہ غریب اجمیری کو مانے. وہ تو حضور کے بعد وہ صحابہ کو بھی نہیں مانتے. حضرت تو یہ بیچارے کون ہوئے؟ یہ اہل حدیث تو بہت ہی خطرناک وہ جماعت ہے. بہت خطرناک ہے حضرت، بہت خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک جماعت ہے. یہ تو اتنی ڈینجر جماعت ہے کہ اگر اس کی پھیل رہے ہیں نا حضرت، بڑھ رہے ہیں، لوگوں کو آسانیاں دے رہے ہیں. یہ نہیں وہ آٹھ تراویح نفل کوئی نہیں، سنت کوئی نہیں، دعا کوئی نہیں. ارے یہ سنا ہے میں نے کوٹا میں، تو یہ سنا تھا ایک صاحب بتایا کہ 50 روپے ایک نماز کا دیتے تھے. اچھا. ایک جگہ اور سنا کہ 100 روپے نماز دیتے ہیں، 50 روپے اپنی تعداد بڑھانے کے لیے. اللہ. مگر ان کی تعداد بڑھ کہاں رہی ہے، بہت کم ہے. پورے انڈیا میں آٹے میں نمک سمجھ لو. ہاں بس گنتی کے لوگ ہیں، لیکن بس وہ یہ سہولت دیکھتے ہیں جرابوں پہ. احمد صاحب اچھا یہ اہل حدیث یہ کہتا ضرور ہے میں اہل حدیث ہے، مگر اسی حدیث کو مانتا ہے جو اس کے مطلب کے مطابق، جو ان کے مطلب کی ہے. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت والی حدیث بیان نہیں کرتا، کبھی اختیار رسول والی حدیث بیان نہیں کرتا، کبھی شفاعت رسول والی حدیث بیان نہیں کرتا ہے. ہاں بالکل نہیں. جبکہ دیوبند والا بھی شفاعت والی حدیث لکھتا ہے کتاب میں، یہ تبلیغ نصاب میں بھی ہے. جی خود زکریا صاحب، شیخ العزیز زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ حافظ قرآن 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا. شفاعت کرے گا. اور بریلوی بھی لکھتا ہے، علامہ حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ فاضل بریلوی کے بارے ماجد ہیں، وہ لکھتے ہیں تفسیر المشاہ میں کہ ایک حاجی جو مقبول حاجی ہوگا، کامل حاجی ہوگا، وہ 400 خاندان کے لوگوں کی شفاعت کرائے گا. جی ماشاء اللہ. تو یہ دونوں طبقے دیوبند بریلی والے تو دیکھو شفاعت کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی عظمت کا بھی ذکر کرتے ہیں، اولیاء کی کرامت کا بھی ذکر کرتے ہیں، اولیاء کے کشف کا بھی ذکر کرتے ہیں، اولیاء کرام کی روحانیت کا بھی ذکر کرتے ہیں. جی اور دونوں طبقے مرید بھی ہوتے ہیں، کسی کا پیر قاضی ہے، کسی کا چشتی ہے، کسی کا سوربردی ہے، کسی کا مجھے آپ کی بات کٹتی ہے. مجھے ایک بات کی بہت اطمینان ہوا اور مجھے ہنسی بھی آئی. آپ نے کسی صاحب کو کہا ارے حضرت اعلیٰ حضرت کو غلط فہمی ہو گئی تھی، لیا ہے فتویٰ ایسا غلط چلت، تو غلط فہمی ہو جاتی ہے. مجھے بہت آپ کی ضرورت پہ داد دینا پڑی کہ ماشاءاللہ یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا. دیکھو ہم مانتے ہیں کہ وہ بڑے عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑے فقیر تھے، لیکن ہر فقیر کی، ہر عالم کی ہر بات ماننا کوئی فرض واجب تھوڑی ہے. نہیں ہے. نہ تھانوی صاحب کی ہر بات ماننا فرض واجب ہے، نہ ناصری صاحب کی ہر بات ماننا فرض واجب ہے، نہ شاہ ولی اللہ صاحب کی ہر بات ماننا فرض واجب ہے. ہر سے آخر تو ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہے. حدیث قرآن اور حدیث. اللہ نے کہا کہ میں یطیع الرسول فقد تعالیٰ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے میری اطاعت. اس سے پہلے تو قرآن حدیث ہے. یہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے اندر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو قرآن حدیث میں اس کا حل تلاش کرو. جی اللہ اس کے رسول کے بعد میں صحابہ کرام کو دیکھا جائے گا. ہاں درجہ بدرجہ ہی تو دیکھا جائے گا. تھوڑی کہ اللہ رسول کے بعد ہم ایک دم کسی ولی کو دیکھیں، حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھیں، حضرت صابر کلیہ. پہلے ہم صحابہ، اللہ رسول کے بعد صحابہ کو دیکھیں گے، صحابہ کو دیکھیں، پھر ائمہ مجتہدین کو دیکھیں گے، اس کے بعد چلیں گے حضرت اولیاء کرام پہ بھی آئیں گے. اور ہم ٹھیک ہے اپنے اکابرین پہ بھی آئیں گے لاسٹ میں سب سے لاسٹ میں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنا اجتہاد کیا ہے، ان کا اجتہاد مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا. اچھا خود تھانوی صاحب نے یہ کہا کہ جو حفظ الایمان میں نے لکھا ہے اس کو یہ نہیں کہا کہ میں نے بالکل صحیح لکھا ہے. انہوں نے خود اقرار کیا کہ جس طرح سے وہ فاضل بریلوی سمجھ رہے ہیں توہین کی میرا وہ مطلب نہیں، تو انہوں نے خود یہ کہا کہ ایسے شخص کو تو میں بھی کافر مانتا ہوں. ہاں بالکل جس نیت سے وہ توہین کے حساب سے سمجھ رہے ہیں کہ گستاخی کے حساب سے، کہا کہ میری تو یہ نیت نہیں ہے کہ اگر اس نیت سے وہ کافر سمجھتے تو کہا ایسے کو تو میں بھی کافر مانتا ہوں. جی اور صاحب وہ لکھ رہے ہیں گاندھی صاحب کہ وہ اگر ہمیں کافر کہتے ہیں تو عشق رسول کی وجہ سے کہتے ہیں. تو اب جھگڑا ختم تو ہو گیا، خود مان تو رہے نا وہ عشق رسول، اب کہا کہ جھگڑا ہے. ہمیں کافر کہہ رہے ہیں تو عشق رسول کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، کسی اور وجہ سے تو نہیں کہتے ہیں. یہ نا ہمارے ایک کافر تھے مولانا عمر صاحب پالن پوری، وہ ایک بار فرماتے تھے، میں نے ان کا بیان سنا کہ ارے میں تو یہ کہتا ہوں یہ پتھر مارنے والے بھی جنت میں جائیں گے. ارے وہ بھی عشق رسول میں پتھر مارتے ہیں.
अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी इसके रसूल में, अरे वो भी सच्चे हैं, वो सीधे साधे हैं। और मैं कहता हूँ क्या पता पत्थर खाने वाले भी जन्नत में जाएंगे, मैं उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, पत्थर मारने वाले भी जन्नत में जाएंगे। पत्थर मारने वाले भी इसके रसूल में पत्थर मारते हैं और पत्थर खाने वाले भी इसके रसूल में पत्थर खाते हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं कि तौहीन है इसमें, कि जो इल्म गैब की मिसाल दी है, और उस बात को उन्होंने थानवी साहब ने मान लिया था कि हाँ ये मिसाल गलत हो गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अल्फाज बदल दिए जाए, यानी उन्होंने जो लिखा था ना उसमें जो तस्करा किया था जानवरों का, उसमें मान लिया था कि इसको बदल दिया जाए, हमारे भाई लोग नाराज हो रहे हैं आलिम, तो इसमें बदल दिया जाए। फिर उन्होंने बदलने तौबा भी किया है, पाकिस्तान में तौबा छपी है। अच्छा, उसके बावजूद ये लोग पीछे पड़े हैं कि साहब किताब अब भी, अरे भाई ये किताब छापने वाले गलती कर रहे हैं, अगर ऐसा लिख रहे हैं तो ये छापने वालों की गलती है, उनकी तो नहीं है ना। अच्छा, ऐसे इस्माइल देहलवी साहब के बारे में फाजिल बरेलवी ने लिखा कि हम उनको काफिर नहीं कहेंगे, उन्होंने तौबा कर ली थी, तौबा कर ली थी, बात तो काफी है उनके। तौबा कर ली, मान लिया, तो अब क्यों पीछे पड़े हो कि साहब उन्हें काफिर कहो, उन्हें काफिर कहो। अरे भाई दुनिया से आदमी चला गया और आदमी तौबा कर गया, मान गया, तो अब क्यों पीछे पड़े, क्यों अब जो लिख रहा है वो जाने। अच्छा, ये अपनी किताबों में देखो ना, ये फाजिल बरेलवी की किताब में लिखा है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी करते हैं। मलफूज में लिखा है, ये बरेलवी से मानता है कि वो तो उन्होंने जुल्कानी साहब को कौल नकल किया है। तो मैंने कहा कि फिर ये मौदूदी ने खिलाफत और मलूकियत में हजरत अली के खिलाफ बहुत से उलमा के कौल जमा किए हैं, तो उसके मानने वाले यही कहते हैं, उसके मानने वाले ने यही कहा कि साहब वो मौदूदी ने थोड़ी कहा है, वो तो उन्होंने कौल जमा किए हैं हजरत अली के खिलाफ में जो आलिमों ने कहा है। अच्छा, तो फिर ये अबू अला को कौल जमा करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब बदजंग करना था साहबा किराम से, हैं? सही हाँ। मतलब ये बचने चाहते हैं कि हमने अपनी तरफ से नहीं करा, तो आलिमों के कौल बता रहा है। अरे तो तू ये सब राय जमा करने का क्या मतलब है तेरा? यानी मुसलमानों से तेरे यानी अजमत साहबा खत्म करने का ही तो मकसद है, और क्या है? हाँ जी, सही है। वरना तुझे जमा करने की क्या जरूरत थी? जिसने जो लिखा तो किताबों में, अब उसको इकट्ठा करके तूने बताया कि देखो इतने आलिमों ने, इतने उस जमाने के आलिमों ने हजरत अली के बारे में ऐसा कहा है। तो ठेका ले लिया कोई इन चीजों का। अच्छा, ऐसे ये लोग बरेलवी कहते हैं कि वो अल्लामा ज़ुरक़ानी का कौल आलात में नकल किया है। तो भाई अल्लामा ज़ुरक़ानी ने किस किताब में लिखा? बहुत पुराने आलिम है, आज के तो है नहीं, बहुत पुराने, 500 साल या 700 साल पुराने। अब उनका कौल ये दोबारा से नकल करके पब्लिक में लाने की क्या जरूरत थी कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। सही है। अच्छा, उस पर कोई इत्तेफाक तो है नहीं उलमा का, न जमहूर का इत्तेफाक है, न सहाबा किराम से रिवायत है, न ताबीन से ऐसी रिवायत है। हाँ, और दूसरा भी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि कब्र में अजान के बारे में आला हज़रत ने लिख दिया, बगैर सबूत के लिख दिया, तो अब तुमने उसको दीन बना लिया। हाँ, दीन बना लिया, और ये अकीदा बना लिया, अकीदा बना लिया। अरे लिख दिया उन्होंने अपने उसमें। अच्छा, अजान का तो मसला चल जाता है, चलो भाई अल्लाह का नाम है, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन जो अकीदा बनाया कि कब्र में शैतान आता, उस अकीदे से अजान देना, ये तो बिल्कुल फासिद अकीदा हुआ है। हाँ बताइए, तो उसका बहकावे का ताल्लुक तो दुनिया से है, दुनिया से है, तो जन्नत पे भी जाके, अच्छा जन्नत पे भी जाके बहकाए। अच्छा, इस बात को खुद बरेलवी भी मान रहा है कि हाँ मरने के बाद उसका कुछ काम नहीं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही हक बोलने की। हाँ, वैसे ये रोटी बस आला हजरत से हो गई है कि हम आला हजरत की हर बात माने, बस इसी में रोजी रोटी है, वरना वो रोटी मिलेगी। आला हजरत की बात नहीं मानेंगे, रोटी का मसला है। उन्होंने मुझसे कह दिया कि नहीं था कब्र में शैतान कहाँ आएगा, जो बरेलवी आलत के मानने वाले आलिम, जैसे सिराज अहमद चिश्ती हैं, बम्बई में रहते हैं, आलत के मानने वाले चिश्ती मशहूर कर रहे हैं, उनकी तकरीब नेट में मिल जाएगी। मुफ्ती अनवारुल हक बरेली लीची बाग वाले हैं, और मुफ्ती जुल्फकार काशीपुर वाले हैं। ऐसे जने कितने मुफ्ती बता दूं आलिम जो आलत के मानने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, न सुना, खबर में शैतान का क्या काम। और बाद में जब मालूम हो जाए कि आलत ने लिखा है, तो फिर वही बोली नहीं फिर तो आलत ने लिखा, पर वही मानेंगे। यानी फिर आप कुरान हदीस को एक्साइड कर देते हैं लोग। यानी इतना डर इनके दिलों में सवाल है कि आला हजरत की वजह से ये कुरान और हदीस को एक्साइड कर देते हैं, तो हम दीन से ही बाहर हो जाएंगे, आला हजरत की बात को ठुकराएंगे। तो ईमान सही कहा, जब अगर तुम आला हजरत की जाते डर जाओ, फिर अपने कौल से पलट जाओ कि नहीं कब्र में शैतान नहीं आता, बाद में आलत का सुन के तुम कहोगे नहीं आता है, तो फिर तुम्हारा ईमान ही कहाँ है? फिर तुम आलिम कैसे बने कि तुम पूरे आलिम बन गए, तुम्हें पता नहीं था कि कब्र में शैतान आता है? तुमने क्या आलिमियत पढ़ी है? मुफ्ती बन गया काशीपुर में, जुल्फकार को कह रहा कि नहीं हमने तो ये रिवायत नहीं पढ़ी। तू मुफ्ती आलिम बन गया, आलिम के बाद मुफ्ती बना, तूने अभी तक ये रिवायत नहीं पढ़ी, तो फिर ये कैसा तू मुफ्ती आलिम है कि तुझे यही खबर नहीं थी कि कब्र में शैतान आता है?
शैतान आता है। तो फिर अब तू पलट रहा है कि आला हज़रत ने जो लिखा है तो हम वही मानेंगे, अब आता है, यानी तू अब आलिम बन गया था, मुफ्ती बन गया, तुझे मालूम नहीं था, जैसे तूने सुना कि आला हज़रत ने लिखा है तो तू पलट गया अपने कौल से कि नहीं ये आला हज़रत ने लिखा है वही सही है, जो कब्र में शैतान आता। अभी तो तू कह रहा था नहीं आता और आला हज़रत का नाम सुन के कह रहा क्या आता है। सही हजरत, कई मसाइल में तो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से इख्तिलाफ किया है, तो क्या वह नाफरमानी लाजम आएगी? बताइए, अरे वो इतना ये वो आला हज़रत ने लिखा है अल-मलफूज में अहकाम शरीफ में कि शरीयत पर तो हत्तल इम्कान अमल करो, यानी हत्तल इम्कान का मैंने तशरीह किया, यानी कोशिश भर अमल करो। फिर लिखते हैं कि मेरे दीनों मजहब पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है, जो मेरी, और साथ में ये भी पाबंदी लगाई, जो मेरी किताबों से जाहिर है, यानी मेरी किताबों से। ये नहीं कहा कि जो औलिया ने लिखी है वही मेरा दीन है, ये नहीं, मेरी किताबों में जो है वही दीन है, उस पर कायम रहना। अल-मलफूज में साफ लिखा हुआ, आखिर में लिखा हुआ। ये आप की हिम्मत है हजरत, इतनी बड़ी बात आप फरमा रहे हैं। नमाज का टाइम हो गया। अच्छा, इंशाल्लाह फिर बाद में बात कर लेना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कारी मोहम्मद सिद्दीक। अच्छा ठीक है, मैं डलवा दूँ चैनल पे अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ डलवा दें हजरत, डलवा दें। ठीक है, फिर बाद में बात कर लेना, बाद में बात। मैं इंशाल्लाह हजरत मैं आपकी खिदमत में फोन किया करूंगा। मैं बिल्कुल आपका, अल्लाह आपको जज़ा दे। बिल्कुल, वो भटिंडी मोड़ पे जम्मू में मेरी तकरीर हुई है रमजान शरीफ में, और एक वो जो मौलाना अयूब साहब इमाम है, फारूक अब्दुल्ला साहब की मस्जिद है ना, उसी के पास में। हाँ अच्छा, दो जगह मेरी तकरीर हुई है जम्मू में। इंशाल्लाह फिर बात कर लेना फिर आप, ठीक है? इंशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।